کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے تقریباً 65 سے 70 سال پہلے ایک شخص تاجر کی حیثیت سے خیری گاؤں میں تشریف لائے ہوئے تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی مرحوم منشی لیاقت اللہ صاحب سنکر نگری تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ دار الہ ان کو غنی کے رحمت میں جگہ دے اور کروٹ جنت الفردوس میں مرحوم منشی لیاقت اللہ صاحب کو جگہ عطا فرمائے۔ یہ ان کی صحبت کا اثر ہے، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے۔ جو آپ کے سامنے ایک ناچیز بندہ کھڑا ہوا جو کچھ آپ سے گزار گوش کر رہا ہے، یہ ان کی ایک ورثہ ہے۔ جبکہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا کہ اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، ہمارے والدین لا علم تھے لیکن تعلیم سے مجھے جوڑ کے رکھا تھا۔ میرا آبائی گاؤں جمائی یہ ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جس گھر کے اندر میں پیدا ہوا ہمارے والدین ان کو جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، مجھے تعلیم سے ضرور چاہے تھوڑا ہی اگلا ہی سے تعلیم دیے، مجھے یہاں سے لے کر اور تلسی پور جامعہ انوار العلوم تک میری تعلیم رہی۔ اس کے بعد جامعہ انوار العلوم سے ہم نے جو تعلیم حاصل کی، اس کے بعد 2 سال جامعہ اشرفیہ مبارک کو ہم نے تعلیم 3 سال حاصل کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہماری جو صحبت ساتھ جو ملی وہ ایک جو ہے موحد لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں سے میری گفتگو اور لوگوں کے ساتھ ہمارا بات چیت، اسی طریقے سے صحیح چیزوں کا، صحیح کتابوں کا، قرآن و سنت کا ہم کو مطالعہ کرنے کا اللہ نے ایسے جگہ پہ موقع فراہم کیا کہ 3 سال تک ہم کسی کے درمیان میں نہیں رہے، ہم 3 سال تک کسی کے درمیان میں رہے، تنہا ہم نے اللہ کی کتاب سے اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے راستہ ہوتے رہے۔ اللہ نے آج ایسی مقام عطا کیا کہ ہمارے علاقے کے کچھ گروہ مسلمانوں نے ہمارا ساتھ دیا، مخلص بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری ماں اور بہنوں نے میری ساتھ دی اور یہاں لا کر اس مقام پر مجھے کھڑا کیا۔ میں ان ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں کو اللہ ثابت قدم رکھے اور اسی طریقے سے وہ دین کی خدمت کرتی رہے، اسی طریقے سے وہ دین کی خدمت کرتی رہے۔ میں ان ماں اور بہنوں کے لیے میں دن رات ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے رات ہو یا صبح ہو یا دن ہو ہماری یہ دینی خدمات کو انجام دینے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ تو محترم حضرات، آپ سمجھ لیجئے کچھ بات کہ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم کریم نگر خیری چوراہ کا جو بنیاد مرحوم منشی لیاقت اللہ صاحب سنکر نگری جو تھے انہوں نے ڈالا۔ اللہ کو منظور، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، مکاتب کئی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تعلیم صحیح ہو، اس کے نظامات صحیح ہو، اس کے ذمہ داران درست ہو، یہ فکر ہے ہمیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے اس بات کی فکر ہے ہمیں۔ بہرحال میں چند باتیں آپ کے سامنے گزار گوش کر رہا ہوں، سماعت فرمانے مرحوم منشی لیاقت اللہ صاحب سنکر نگری اور اسی طریقے سے ہمارے سابق پردھان جو آج موجود ہیں خالد نبی صاحب گرام سبھا پریم نگر کے، ہم کو بلایا گیا اپنے گھر پر۔ سابق پردھان خالد صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آبا اور اجداد کی میراث کو سنبھالنے کا کیا انتظام کیا جائے، کیا انتظام کیا جائے۔
उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी। बहरहाल जो मस्जिद वाला मदरसा है, मैं तालीम इसी में दे रहा था, ठीक है। और जो भाई उस मदरसे की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीनी तरक्की अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस मदरसे को दीनी तरक्की अता फरमाए और सही रास्ते पर हम चले। तो बहरहाल मरहूम मुफ्ती लियाकतुल्लाह साहब संकर नदवी रहमतुल्लाह, इसी तरीके से साबिक प्रधान हमारे ग्राम सभा प्रेम नगर के खालिद नदवी साहब ने मुझे मशवरा दिया। 2013 में हम उस मदरसे से निकल गए। निकलने के बाद हम चले गए भोकरा, एक गांव है, 1 साल हमने तालीम वहां पर दिया। भोकरा में 1 साल मैं दे रहा था। खालिद साहब को हमारे पता नहीं था कि हुसैन हमारे दरमियान में दिख नहीं रहे हैं। इस चौराहे पर जब वो आते थे तो आंख से आंसू आती है, तो जब मुझे नहीं देखते तो सब कांप जाते थे कि हुसैन ने दिखा यार, हम उनके दिल के अंदर वो मोहब्बत थी तौहीद के लिए। उसी तरीके से खालिद साहब ने जब पता लगाया कि हुसैन कहाँ है, लोगों ने बताया कि वो जो है भकरा गांव के अंदर पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं बच्चों को। उन्होंने मुझे फोन करके बुलवाया, बोले बेटा साल पूरा कर लीजिए और आइए, हमारा कमरा आपके लिए है। हमारा कमरा बना हुआ है, बनाया कमरा। 6 साल तक उन्होंने 100 बच्चों को बिना नवाजा तालीम देने के लिए वक्फ कर रखा था। एक 6 साल तक लगातार हमने तालीम दिया। साबिक प्रधान साहब खालिद ने 6 साल तक बिना नवाजा तालीम देने के लिए 100 बच्चों को 3 टीचर हमारे साथ में हमेशा रहते थे। आज भी वो मौजूद है हमारे दरमियान में। मैंने 6 साल तक तालीम 100 बच्चों को लेकर उनके कमरे के अंदर, उनके हाल के अंदर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको उसके बदले में जज़ाए खैर दे। और जो बीमारी के हालत में चल रहे हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जब तक रहे हमारे दरमियान में मौजूद रहे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है हमेशा तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और इसी तरीके से दीन का जज्बा उनकी औलाद को भी दे। बहरहाल मरहूम मुफ्ती लियाकतुल्लाह साहब संकर नदवी रहमतुल्लाह का ये हम पर असर है, या आप जैसे बड़े बुजुर्गवारों का सोहबत का ये असर है कि जो मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर कुछ चंद बातें कर रहा हूँ। 2013 में हमारे प्रधान जी से ताल्लुकात जो ग्राम सभा लेवल पर अशखास यानी लोगों से जो ताल्लुकात थे, किसी एक गैर मुस्लिम जिसका नाम नानी छटकऊ है, जिसका नाम नानी छटकऊ है, गैर मुस्लिम भाई था। प्रधान जी से उसका ताल्लुकात अच्छे थे। हाँ, मशवरा दिया, बैठ के बातें चीते थी और कहा कि छटकऊ कुछ मदरसे की जमीन दे दीजिए, कुछ मदरसे को जमीन दे दीजिए। बहरहाल मदरसे के जमीन को दिया गया। छटकऊ ने जो है प्रधान जी को बुलाया और बिना कीमत नहीं, कीमत दी गई, इस जगह की कीमत दी गई। और वो बंदा जो आज हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, वो भी दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसके बच्चे भी आज इस बात पे गवाह है कि पैसा इस जमीन का हमें मिल चुका है। कोई जोर जबरदस्ती में मौलाना आप जो भी कहे, जहां कहे, हम चढ़ कर हमारे पास वक्त की कागज मौजूद है, जहां आप कहे हम बैनामा करने के लिए तैयार हैं। ये है हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे प्रधान साबिक प्रधान साहब के ताल्लुकात का असर। तो 2013 में जमीन खरीदा गया। 2013 के बाद में तक 2022-23 तक हमने उनके कमरे में तालीम दिया बच्चों का। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम प्रेम नगर खैरी चौराहा के नाम पर। और उसके बाद में 2024 में इस पर बुनियाद डाली गई, जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर आप तशरीफ लाए हुए हैं।
इसकी बुनियाद डाली गई 2022 में। पैसे की किल्लत थी, फिर वो जवार के या बैरून के लोग जो बंबई के, महाराष्ट्र के कुछ हमारे साथियों में से थे, उन लोगों ने भी मिलकर हमारा साथ दिया। और इसी तरीके से ये शेख जो हमारे बैठे हुए हैं, तमाम उलमाए कराम जो अभी यहाँ से तशरीफ ले गए और जो लाए हुए थे, ये सब लोगों ने मेरा साथ दिया कि मदरसा बनाइए मौलाना, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम अच्छी होनी चाहिए, बेहतर काम होना चाहिए, मशवरा दिया और इसकी बुनियाद 2022 में हमने डाल दिया। लेकिन जब तक तालीम उसी में होती रही, उसके बाद 2024 में हमने जब इस पर कुछ काम करा लिया तो हमने जो है ये हाल के शक्ल में आपके सामने खड़ा किया गया। हाल के एक शक्ल में खड़ा किया कि जो 22 बाई 50 के एरिया में बना हुआ है और मदरसे की जो जमीन है यहाँ तक है, वक्फ है, यहाँ तक वक्फ है, उसकी जो बाउंड्री है आप लोग जो देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लिखत कागज है, वक्फ की हुई, बयान की हुई कागजात है हमारे पास। ऐसा कोई नहीं है ये जमीन किसी जो जबरदस्ती के नाम पे बनाया गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की खुशी मनसी और राय थी, मैंने उन लोगों की राय को समझा। इसी तरीके से हमारे इलाके के मशहूर लोग या उनके कहिए जिम्मेदार लोग जो चौधरी बरादरान साहब लोग थे, उन लोगों ने मेरा भी साथ दिया। जैसे मरहूम रियाज अहमद साहब, अल्लाह जन्नत दे, अतीक मरहूम अतीक अहमद साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, ऐसे लोगों ने मेरा साथ दिया। ये जमीन की खरीदारी से लेकर और तामीरी काम तक उन लोगों ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनकी दी हुई अमानत को कबूल फरमाए। अल्लाह मैं दुआ गो हूँ ऐसे खास में। और अभी छोटे भाई हमारे साबिक प्रधान के मोहम्मद साबिक चाचा सामने बैठे हुए, इन लोगों ने हमेशा हमें तसल्ली देते रहे और बोलते रहे कि घर मत छोड़िए बेटा, घर छोड़ना आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपके बच्चे कहाँ तालीम पाएंगे, आप घर छोड़ दोगे, गांव इस लायक नहीं है, तालीम से दूर हो जाएंगे बच्चे। ये ऐसे अस्थान हमारा साथ दिए हुए बैठे और इन लोगों की सोहबत का ये असर है कि अल्लाह इन लोगों को तंदुरुस्ती दे और इसी तरीके से दीन की जज्बा पैदा करे। और अल्लाह से दुआ करे कि दारे इलाह जो हम में से बीमार चल रहे हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। बहरहाल मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम आज जिस जगह पर आप तशरीफ लाए हैं, ये कायम और दायम है, रमा और दमा है, तालीम का सिलसिला जारी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमने इखलास की बुनियाद पर लोगों का रकम खर्च किया है तो मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है ये कल सुबह क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जिंदगी रहे या न रहे, मेरी नस्ल आपकी नस्ल इसको जरूर संभालेगी। जिस तरीके से मरहूम मुफ्ती लियाकतुल्लाह साहब के ये वर्षा बैठे हुए हैं, ये सामने मौजूद मौलाना अबुल कलाम आलियानी साहब, मौलाना हाफिज वो कारी इकबाल यासीन हाफिज इकबाल साहब जो सऊदी के अंदर जो है आज ये दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इस इलाके के अंदर जो हमारे पढ़े लिखे माहिर लोग हैं, जो अपनी जमीयत जमात के लोग हैं, ये उन्हीं के सोहबत का असर है और वो अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। हर जगह वो मैदान में अल्लाह का फजल है कि वो कामयाब है। बहरहाल ये थी चंद बातें इस जगह के मुतालिक और हमारी तालीमी दौर का मामला और इस जगह के ताल्लुक से और हमारे जुड़े हुए साथियों में से या हमारे जुड़े हुए भाइयों में से। तो मैं यहाँ पर एक बात और वादे करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं तो एक गैर मुस्लिम, फिर सुन लीजिए, एक गैर मुस्लिम की थी, लेकिन देखिए जोग और जज्बा देखिए, शौक देखिए कि उन्होंने मुझे भी बुलाया, प्रधान जी मौजूद थे और उन्होंने कहा मौलाना आप जो देना चाहते हैं मदरसे के लिए दे दीजिए। ठीक है, हमने कहा कितना दे दो, तो उसने कहा कि 2 बिस्वा जमीन, अगर आप 12 बिस्वा ले रहे हैं
तो 2 बिस्वा जमीन हमारे तरफ से मदरसे के नाम पे। ये था बताइए हमारे प्रधान जी का साथी संगत लोगों का कि मोहब्बत कैसी थी। और ये कीमत उसकी 2,75,000 रुपया अदा कर दी गई थी 2013 में। 2,75,000 जो लिखित तौर पर कागज में मौजूद है। यकीनन अगर आप देखना चाहते हैं तो रखा हुआ कागज है, उसमें हम मंगाकर आपको दिखा सकते हैं। बहरहाल तो उन्होंने प्रधान जी इस नेक काम के लिए कदम आगे बढ़ाया और राह खुदा में इसको वक्फ कर दिया गया। 2022 तक उसी चौराहे पर बिना मुआवजा प्रधान जी के मकान जो कि फैल था पड़ा था, उसी उधर मकान में तामीरी काम चलता रहा बिना मुआवजा। दिन भी आ गया जब हम अपने बच्चों के साथ इदारा मुंतकिल हुआ और 2024 में जिसकी इमारत आज आपके सामने है और आप सभी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और दीनी कामों में सबसे अव्वल में रहने वाले थे लोग आज अपने इदारा के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है और मैं यही दुआ करूंगा बारे इलाह से कि इलाहुल आलमीन हम सबको दीनी खिदमत को अंजाम देने की अल्लाह तौफीक दे। और इसी तरीके से आखिर में ये दुआ करूंगा कि बारे इलाह जहाँ के भी मकातिब हो, मदारिस हो, अल्लाह उन सबकी हिफाजत फरमा और उन सबका खिदमत अंजाम देने की सबको तौफीक अता फरमा। हमारी माँ बहनें जो आई हुई है, जहाँ पर बैठी हुई है, आज अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों पर नजर रखे और जो ये माह शाबान का खत्म होगा और रमजान का आ जाएगा, तो रमजान के महीने में मैं उन अपने माओ से, बहनों से, बेटियों से एक नसीहत कर रहा हूँ कि रमजान के महीने में भी जिस तरीके से 10 महीना तक तालीमी सिलसिला बड़ा था मदरसे में, इसी तरीके से अपने घर पर अपने बच्चों का देख रेख भी करेंगी इंशाअल्लाह ताला। और दुआ करेंगे आखिर में कि अल्लाह हम सबको हमारे अमल के अंदर अखलास पैदा करे, हमारे इबादत में अखलास पैदा करे और हम सबको दीन की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक दी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।